Class is a combination of member functions and data members and member functions. Data functions and data members. perfect, beautiful. So class is a combination of data members and दूसरा पार्ट क्या है, member functions, जिनको हम मेथड्स बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम। तो स्टैटिक जो है ना दोनों पे लगता है, स्टैटिक डेटा मेथड्स भी है। तो डेटा मेंबर्स जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्टैटिक, लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो स्टैटिक का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वही एग्जांपल लेते हैं। देखो एक एग्जांपल को 10 बार लेना कोई वो नहीं है, इट इज नॉट अ डीमेरिट सॉर्ट ऑफ, इट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो भले ही एक एग्जांपल को 10 बार रिपीट करो, पर अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वर्थ है। तो let's take an example of static data. So first, so we have both the flavors of static data members also and static methods. So let's take this one first. Static data member पहला लेते हैं। तो static का डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखेंगे तो उसको बोलेंगे शेयर्ड। क्या बोलेंगे, हेलो, shared. Now what I am giving in the example is if in a family you have mom, dad and the son, तो बताओ पेयर ऑफ ड्रेसेस मॉम का अपना 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 हो, खुद का होगा, she'll have her own pair of dresses, the dad will have his pair of dresses, and the son will have his pair of dresses, yes or no? Yes, sir. सबका अपना अपना रहेगा, प्राइवेट। ओके, व्हाट अबाउट मोबाइल फोन, mom will have her own, dad will have his own, and the son will have his own, yes or no? Yes, sir. But what about the refrigerator, what about the fridge, Common. what about the fridge, That will be common. that will be shared by all of them। तो वही फ्रिज Yes, sir. को मॉम एक्सेस करेगी, वही फ्रिज को डैड एक्सेस करेंगे और वही फ्रिज को सन एक्सेस करेगा, यस और नो? Yes, sir. ओके, अब जो है ना सबसे स्पॉन्टेनियस मिस्टेक people, the most common mistake people do while answering in the viva or in the interview, when asked what is static data, so they tell static data is constant. What they say, It's constant. it is not constant, it is shared। तो ये सबसे बड़ा मिथ है, सबसे बड़ा मिथ ये है कि static data is constant, it is not constant। ये एरर है, ये गलत है। The reason now I'll explain you why is it not constant। What does constant mean? Something that does not change. Something that doesn't change। What is the value of pi? 3.14. Okay, so what is the value of pi at your place, Sid? You stay at what, NIBM? Fatima Nagar. Fatima Nagar. What's the value of pi in Fatima Nagar in KPIT Mall? 3.14. And Danish, what's the value of pi in Solapur Bazaar? All the same. Or what's the value of pi in Rajasthan, Zaid? 3.14. तो वो डेटा जो कभी चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका क्या, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप,
आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ब्लड ग्रुप, आपका मदर नेम, फादर नेम, ये वो डेटा है जो कांस्टेंट है, यू कांट चेंज इट. So if I say what was your date of birth in first standard and what was your date of birth in graduation, what will you say? Same. What was the blood group in fourth standard? What was the blood group in now? Same है ना. तो वो डेटा जो आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं कांस्टेंट. फ्रिज हम चेंज कर सकते हैं. तो 2010 में हमने फ्रिज लाया था, सैमसंग कंपनी का था. किसका था? So now in 2010, if I ask the mom which brand fridge are you all using, what will she say? If I ask the dad, what will he say? If I ask the son, what will he say? 2020 में उन्होंने अपग्रेड कर दिया, सैमसंग से उन्होंने अपग्रेड कर दिया लेट्स से गोदरेज को. अपग्रेड है क्या डाउनग्रेड आई डोंट नो, बट लेट्स से दे चेंज द ब्रांड टू गोदरेज. नाउ इफ आई आस्क द मॉम व्हाट विल शी से? तो ये चेंज हुआ क्या नहीं हुआ? तो इज इट कांस्टेंट? तो ये बोलने की बेवकूफी मत करना वाइवा इंटरव्यू में, एग्जाम में, कि स्टैटिक डेटा इज कांस्टेंट. इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग. मे बी 2030 they might upgrade to a other version, they might go to higher, they might go to another brand. So it is changing, right? But it is changing, but it is changing in a very consistent manner. So if it changes for the mom, it also changes for the dad, it also changes for the son. Okay, the son gets married, the son-in-law comes in. Okay, sorry, daughter-in-law, not कोई LGBT वाला सीन थोड़ी है. तो द daughter-in-law comes. So daughter-in-law का भी अपना अपना ड्रेसेस होगा, है क्या नहीं? उसका अपना खुद का मोबाइल होगा. But daughter-in-law will also share the same refrigerator. तो जो रेफ्रिजरेटर है ना वो स्टैटिक डेटा है. क्या है? क्या है? ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं. व्हाट अबाउट द, कैन यू गिव मी एनी मोर स्टैटिक डेटास? टीवी. या मैं वही बोलने वाला था, बट आजकल कैसे सबके बेडरूम में अपना अपना टीवी होता है, तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था. तो टीवी भी वही है ना? तो वाईफाई बोल सकते हैं. हाँ, वाईफाई बोल सकते हैं, करेक्ट, ये बात सही है. तो ऐसा तीसरा वाईफाई. तो एक क्लास में हम मल्टीपल स्टैटिक डेटा रख सकते हैं, एक क्लास में हम, बट उस स्टैटिक डेटा का एक ही कॉपी रहेगा. तो एक ही फ्रिज, एक ही टीवी, एक ही वाईफाई. यू कैन हैव मल्टीपल स्टैटिक डेटा बट वन कॉपी पर स्टैटिक डेटा फॉर द एंटायर क्लास, फॉर द, अब उसके कितने भी ऑब्जेक्ट हो. अभी इसमें ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, ग्रैंड चिल्ड्रंस है, तो वो सब के सब वही यूज करेंगे. तो अगर उस क्लास के एक ऑब्जेक्ट हो या 10 ऑब्जेक्ट हो या 100 ऑब्जेक्ट हो या लाख ऑब्जेक्ट हो, उन सब के लिए एक ही कॉमन बनेगा. यस और नो? यस सर. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैटिक. तो ये तो हो गया रियल वर्ल्ड एग्जांपल. प्रोग्रामिंग एग्जांपल में कैन यू ऑल गिव मी एनी, कैन यू गिव मी अ प्रोग्रामिंग एग्जांपल? ओके, आप लोग की जो डिग्री आती है, डिग्री जो सेकेंड ईयर में देखा होगा आपने, आए होगी थर्ड सेमेस्टर में, तो उस पर लिख के आता है यूनिवर्सिटी नेम. क्या लिख के आता है? शट अप. यूनिवर्सिटी नेम क्या लिख के आता है? व्हाट इज द यूनिवर्सिटी नेम? या SPPU है ना. तो 1980s में उसका नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे. क्या था? ये सब जो है ना ब्रिटिशर्स के जमाने के इंस्टीट्यूट्स है. तो क्या था?
यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। तो यूओपी क्या बोलने के उसको, यूओपी बोलने के, वो छोटा था तो उसको बोलते के यूओपी। क्या बोलते थे, मतलब क्या, SPPU। हाँ। तो अगर किसने 1980 में पास आउट किया है तो उसका जो डिग्री आता था उस स्टूडेंट का, तो उस स्टूडेंट के डिग्री पे क्या लिख के आता था। तो अगर 1980 में 10,000 स्टूडेंट्स थे, कितने स्टूडेंट्स थे, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अंडर में 10,000 स्टूडेंट्स थे, 10,000 स्टूडेंट के डिग्री पे क्या लिख के आने का, यूओपी, राइट। तो Yes, sir. फिर वो इन आर स्टडिंग डेज व्हेन आई वाज देयर, लेट्स से इन 2000, वो चेंज हो गया, क्या हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी। क्या हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी। वो चेंज हो गया पुणे यूनिवर्सिटी, बिकॉज द एंटायर कंट्री वाज गोइंग थ्रू दिस नेमिंग, रीनेमिंग। बॉम्बे बिकेम मुंबई, मद्रास बिकेम चेन्नई, कैलकाटा बिकेम कोलकाता। तो ये सब मेट्रोज को नाम के चेंजेस चल रहे थे। तो ये पहले पूना था, फिर ये पुणे बन गया, तो ये हो गया पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो अगर ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. तो अभी ये क्या हो गया था, पीयू बन गया था। क्या बन गया था ये, पीयू। PU। और अभी 2000, अभी आप लोगों के लिए 2020 में ये क्या बन गया, SPPU। एसपीपीयू, है ना। तो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, Yes, sir. but Yes, it, sir. so in, let's say in my studying days, if there were 50,000 people, so if there were 10,000 students over here, all 10,000 would have what on their university name. And if now in my days there were, if in my days there were 50,000 students, all will have what. And in your days, if there are 1 lakh students, all will have what. SPPU। So bottom line is it changing or not, चेंज हो रहा है कि नहीं। It तो definitely is। किसके लिए चेंज हो रहा है, किसी एक बंदे लिए कि सबके लिए, सबके लिए। तो उसको बोलेंगे स्टैटिक डेटा, जो सबके लिए कॉमनली। तो इज इट कांस्टेंट, इज इट कांस्टेंट, No, sir। हैड, ओके, हैड इट बीन कांस्टेंट, अभी भी क्या लिख के आता था, UOP। यो, समझा। तो ये हो गया स्टैटिक डेटा। तो Yes, sir। और स्टैटिक मेथड क्या होता है, ओके, स्टैटिक मेथड क्या होता है, ओके, व्हाई डू वी क्रिएट अ क्लास, That can create objects of that class। एंड व्हाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स That can access member function। To access the methods ऑफ दैट क्लास, है ना। ये सिंपल सा 2 क्वेश्चन आपको आना चाहिए, व्हाई डू वी क्रिएट अ क्लास, व्हाई डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। सो टू एक्सेस द मेथड्स ऑफ द क्लास, व्हाट इज रिक्वायर्ड, object of that class। ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। यहां पर मैं अभी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट करूंगा, इसको थोड़ा ट्विस्ट करूंगा मैं। स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या नहीं है, Object की requirement नहीं है। स्टैटिक मेथड को एक्सेस करना है तो ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है। यू कैन एक्सेस स्टैटिक मेथड इवन विदाउट द ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली विद द क्लास नेम, डायरेक्टली विद द क्लास नेम। तो एक तो उसका ये मिल जाता है एडवांटेज। तो स्टैटिक मेथड का पहला एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्ट इज Not compulsory। स्टैटिक। तो ऑब्जेक्ट का बनाना कंपलसरी नहीं है स्टैटिक मेथड एक्सेस करने के लिए। और दूसरा उसका ये है, इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक डेटा, ओनली Static data।
अगर डेटा नॉन स्टैटिक रहेगा तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो ये दो चीजें उसमें होती है स्टैटिक मेथड के अंदर, समझा? ओके, अभी हम लोग एक प्रोग्राम कर लेते हैं इसके ऊपर। तो प्रोग्राम के पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं करना क्या चाहता हूँ। ओके, लेट्स से वी हैव अ क्लास, और क्लास का नाम मैंने दिया इनमटेक। क्या दिया? इनमटेक। तो इसमें हम लोग क्या क्या डेटा रखेंगे? जो आने वाला स्टूडेंट है उसका रोल नंबर और स्टूडेंट्स के नाम। कैन रोल नंबर बी स्टैटिक? कैन रोल नंबर बी स्टैटिक? विल आई गिव रोल नंबर एज स्टैटिक? व्हाई नो? No sir. No sir. क्यों नो? Because हर student का अपना अपना same for every student. हाँ, वेरी गुड। कैन आई गिव नेम स्टैटिक? No some. विल आई गिव नेम स्टैटिक? No sir. No sir. नो। ओके, अभी समझो फर्स्ट स्टूडेंट जिसने एनरोल किया वो सिड था, तो सिड का रोल नंबर क्या हो गया? 1 हो गया, और उसका एस नेम क्या हो गया? ओके, तो अभी मैंने ना बैच का स्ट्रेंथ नोट करना है। क्या नोट करना है? Batch का strength. स्ट्रेंथ। तो अभी कितने बच्चे हैं क्लास में? तो स्ट्रेंथ क्या हो गया? 1. तो नाउ इफ आई आस्क सिड व्हाट्स योर रोल नंबर, व्हाट विल यू टेल? 1. एंड व्हाट्स योर नेम? ओके, फिर अगला आ गया लेट्स से जेड। तो रोल नंबर क्या मिला जेड को? 2. और ये स्ट्रेंथ क्या हो गया अभी? 2 हो गया. स्ट्रेंथ 2 हो गया। तो नाउ इफ आई आस्क सिड व्हाट्स योर रोल नंबर, व्हाट विल ही से? 1. व्हाट्स योर क्लास स्ट्रेंथ? 2. इफ आई आस्क जेड व्हाट्स योर रोल नंबर 2. एंड स्ट्रेंथ 3। अभी ऐसे हम जो दानिश जो है वो 20वां स्टूडेंट है। कौन सा स्टूडेंट है? 20. तो स्ट्रेंथ कितना हो गया? 20. नाउ इफ आई आस्क सिड व्हाट्स द स्ट्रेंथ, व्हाट विल यू टेल? 20. इफ आई आस्क जेड व्हाट विल यू टेल? स्ट्रेंथ कितना है? 20. इफ आई आस्क रोल नंबर 17 स्ट्रेंथ कितना है, व्हाट विल ही से? 30. तो स्ट्रेंथ स्टैटिक हुआ कि नहीं हुआ? सब लोगों के लिए कॉमन हो गया ना वो? Correct. जितने भी स्टूडेंट्स है, Yes, sir. जितने भी स्टूडेंट्स है, नाम का अलग अलग, रोल नंबर अलग अलग। जैसे इधर मॉम का ड्रेस अलग, मोबाइल अलग, बट फ्रिज सबका सेम है ना? अगर वो चेंज भी हुआ सबके लिए चेंज होगा ना? Yes, sir. तो अभी एक और बंदे ने एनरोल कर लिया तो वो हो गया 21 वाला। तो हर्ष अगर आता है, हर्ष आता है तो हर्ष का रोल नंबर क्या होगा? 21. तो अभी ये 21 स्ट्रेंथ सिर्फ हर्ष के लिए हुआ कि सबके लिए हुआ? सबके लिए हुआ. तो उसको बोलेंगे, तो इसके लिए स्ट्रेंथ क्या, क्लास का स्ट्रेंथ क्या रहेगा मेरा? तो उसको डिक्लेयर करने का रहेगा, तो स्टैटिक कीवर्ड रखने का। क्या लिखने का? Static. तो हाउ टू मेक द कीवर्ड, हाउ टू मेक अ वेरिएबल स्टैटिक? बाय एडिंग विच कीवर्ड टू इट? Static. और स्टैटिक डेटा ना, देखो रोल नंबर का डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज है। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? Garbage. बट स्टैटिक का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। क्या होता है? 0. स्टैटिक को ये प्रिविलेज मिलता है कि उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? 0। आया समझ में? Yes, sir. ओके, नाउ इफ आई हैव अ फंक्शन void f1, is f1 static? Yes, sir. नो। स्टैटिक के लिए स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ता है आगे भाई। तो मैंने लगाया स्टैटिक कीवर्ड f1 के लिए। तो इट कैन एक्सेस एवरीथिंग, इट कैन एक्सेस। तो अगर उसको डिस्प्ले करने का रहेगा, अगर उसको डिस्प्ले करने का रहेगा ना, तो वो सब कुछ डिस्प्ले कर सकता है। तो अगर उसको डिस्प्ले करना है SOP, तो वो रोल नंबर भी डिस्प्ले कर सकता है, एस नेम भी डिस्प्ले कर सकता है, और स्ट्रेंथ भी डिस्प्ले कर सकता है।
बट स्टैटिक फंक्शन क्या कर सकता है सिर्फ? तो स्टैटिक मेंबर को एक्सेप्ट Yes. एक्सेस कर सकता है। और अगर मैं लिखता हूं स्टैटिक void f2 मतलब क्या? फंक्शन स्टैटिक है, वो क्या एक्सेस कर सकता है? स्ट्रिंग को। कैन इट एक्सेस रोल नंबर? नो, नो, नॉट अलाउड. कैन इट एक्सेस नेम? नो, अगर वो SOP एस नेम करे अलाउड है क्या उसको? नहीं सर। तो उसको अलाउड नहीं, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक डेटा एक्सेस कर सकता है, उसको अलाउड नहीं. कैन इट एक्सेस स्ट्रेंथ? यस सर, क्योंकि स्टैटिक है। क्योंकि वो स्टैटिक है. ये इसको अलाउ कर देगा उसको. दिस इज अलाउड. तो अगर किसी फंक्शन के आगे स्टैटिक कीवर्ड लग गया मतलब क्या? कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर्स। ओके, उसका लोकल कुछ भी चलेगा, उसके अंदर का जो फंक्शन है ना, उसके अंदर का जो मेथड है, उसके अंदर का डेटा है, जैसे अभी इंटीजर a इज a स्टैटिक? इज a स्टैटिक? नो सर। पर वो उसके अंदर का है ना, लोकल है. तो लोकल कैन बी एनीथिंग. लोकल कैन बी, लोकल की जरूरत नहीं कि स्टैटिक ही हो, सिर्फ बाहर का क्लास का जो भी होगा दैट शुड बी स्टैटिक. समझ में आ रहा है? यस सर। क्या समझा? यस सर। क्या समझा इसके अंदर बोलो. So static functions can access only static data members of any given class. And उनके लिए स्टैटिक फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, आप सीधा क्लास का नाम लिख के उसको एक्सेस करा सकते हो. ओके. एंड स्टैटिक फंक्शन के अंदर जो डेफिनेशन में आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो वो नॉट नेसेसरली स्टैटिक होना चाहिए, वो एक लोकल वेरिएबल. वो लोकल वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. ठीक है. इसका एग्जांपल वी कैन थिंक ऑफ कि लेट्स से अंडर आवर इंस्टीट्यूट नो दे सेल छोले भटूरे. So I guess y'all have come or not, Sid and Zaid, y'all have even seen the institute at Arwa Towers. तो उसके नीचे ना वो छोले भटूरे जो है ना सेल करते हैं. तो I am eating that and the bhatura is deep fried. You might have seen it's like a puri, वो deep fry होता है. तो I am eating this downstairs and Sid passes by and I offer Sid please join and let's eat together. तो सिड क्या बोलता है कि सर आई डोंट ईट डीप फ्राई, डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया है मुझे, तो आई ऑलवेज अवॉइड ईटिंग डीप फ्राई. तो ऐसे ओके या योर चॉइस, ठीक है. एंड देन सिड लीव्स and after few weeks he invites me over, let's say Diwali time, and he invites me over and he is eating puri in front of me and he is offering me also, sir आप भी पूरी खाओ. और पूरी भी क्या होती है? डीप फ्राई. तो मैं उसको ये रिमाइंड करता हूँ कि few weeks ago when I offered you कि let's eat bhatura, you told no sir I don't eat deep fry, and now you are eating deep fry in front of me and offering me also. तो सिड क्या बोलेगा, सर आपने मेरी बात सुने नहीं पूरी, मैंने ये बोला था कि मैं बाहर का, घर के बाहर का जो भी है आई डोंट ईट डीप फ्राई बिकॉज आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑयल दे यूज, बट वॉट एवर माई मॉम कुक्स, वो डीप फ्राई हो, शैलो फ्राई हो, सॉल्टे हो, भुना हुआ हो, कुछ भी हो, वो मैं खाता हूं. तो ऐसे फंक्शन के बाहर का जो डेटा होगा वो क्या होना चाहिए? कंपलसरी. वो कंपलसरी स्टैटिक चाहिए. बट फंक्शन के अंदर का लोकल क्या हो, वो कुछ भी हो, उसका स्टैटिक होना जरूरी नहीं है. आया समझ में? हाँ. तो अभी इसको प्रोग्रामिंग में रेप्लिकेट करते हैं जल्दी, अपने पास 7-8 मिनट बचे हैं सेशन को. लेट्स रेप्लिकेट दिस इनटू अ प्रोग्राम
so things will be more clear. So ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाया इनमटेक नाम से। क्या बनाया क्लास? उसमें हर एक का रोल नंबर अपना अपना, तो स्टैटिक है क्या? सबका नाम अपना अपना, तो स्टैटिक है क्या? बट जो स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वो स्टैटिक रहेगा। ओके, फिर मैंने बनाया एक कंस्ट्रक्टर। क्या बनाया? तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा? पब्लिक एनएमटेक। जो क्लास का नाम वही कंस्ट्रक्टर का नाम। तो ये कौन सा है, डिफॉल्ट है क्या पैरामीटराइज्ड है? तो डिफॉल्ट रोल नंबर दे दिया 1, डिफॉल्ट एस नेम दे दिया एलिस। एलिस इज माय ट्यूशन टीचर्स नेम व्हेन आई वाज अ किड। और व्हेनेवर यू विल मेक अ ऑब्जेक्ट, व्हाट विल इंक्रीज? जब भी नया एडमिशन होगा तो क्या इंक्रीज होगा? स्ट्रेंथ। तो जब भी नया एडमिशन आएगा, when is the constructor called? whenever new object is made, no? तो जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या इंक्रीज होगा? स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी एक बनाता हूं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। तो पहला आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का, इंटीजर टाइप का। दूसरा आर्ग्यूमेंट है स्ट्रिंग टाइप का। डोंट पास द स्टैटिक एज अ आर्ग्यूमेंट टू द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, स्टैटिक को आर्ग्यूमेंट पास मत करो। तो रोल नंबर जाएगा ए, ये जाएगा बी, और इससे भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? तो कोई जाके एडमिशन ले रहा है ऑफिस में जाके, और ऑफिस में जाके फीस पे कर रहा है, तो उसका भी एडमिशन हो गया। और कहीं ऑनलाइन फीस पे कर रहा है, उसका भी एडमिशन हो गया, है ना? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसका भी ऑब्जेक्ट बन गया, और पैरामीटराइज से बन रहा है, उसका भी ऑब्जेक्ट हो गया। तो बोथ द केसेस में व्हाट विल इंक्रीमेंट? एंड नाउ इफ आई से void display, so I will display what in this now? Roll number and name. I want to display only roll number and name. For the strength I'll make one more object. स्ट्रेंथ के लिए मैं एक और बनाऊंगा फंक्शन, void display count। डिस्प्ले काउंट क्या नाम दिया मैंने? तो वो क्या फंक्शन है? वो स्टैटिक फंक्शन है। तो कैन आई डिस्प्ले रोल नंबर ओवर हियर? In this, can I display roll number? Can I display name? Can I display strength? ठीक है, और उसके आगे मैं कोई प्रीफिक्स कर दूंगा, एक स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, और प्लस इज द कॉनकैटिनेशन। प्लस क्या है? कॉनकैटिनेशन के लिए। ये किया, क्लास क्लोज किया। एक क्लास जिसमें मेन लिखेंगे, पब्लिक क्लास ईटी मेन। क्या नाम दिया मैंने उसको? इनमटेक का मेन। उसमें क्या रहेगा? और okay, now have I made any object? I'm making the object at which line? 37, this line. So before creating the object, can I call this function display? No, sir. But can I call display count? Yes, sir. किससे? डायरेक्टली किससे? इसके नाम से। तो क्या बोलेगा वो? अभी कोई ऑब्जेक्ट बने हैं क्या लाइन नंबर 36 पे? नहीं सर। तो क्या बोलेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 0, बिकॉज स्टैटिक इज इनिशियलाइज्ड टू 0, है ना? yes sir. फिर मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो ये E1 का रोल नंबर और नेम क्या है? E1 किससे बन रहा है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ना? Yes sir. तो रोल नंबर और नेम क्या है? Alex 1 और स्ट्रेंथ क्या हो गया? 1 है ना? और E2 बनाता हूं मैं,
10. तो अभी स्ट्रेंथ क्या हो गया, ये बना है पैरामीटराइज से, ये बना है पैरामीटराइज से, तो स्ट्रेंथ क्या हो गया अभी 2. तो अभी अगर मैं E1 से बोलूं, E1 को अगर मैं बोलूं डिस्प्ले काउंट, क्या बोलेगा वो 2. E2 2 ना भाई, दो ऑब्जेक्ट बन गए ना. जब सेकेंड स्टूडेंट एनरोल कर लेगा तो रोल नंबर 1 क्या बोलेगा, कितने बच्चे हैं, और E2 से पूछो तो क्या बोलेगा 2. और अगर मैं क्लास से पूछूं तो इसके लिए यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ दे वर्क. ठीक है, क्लोज दिस, क्लोज एवरीथिंग. हाउ विल आई सेव दिस एज, किधर वो जो फंक्शन था ना स्टैटिक फंक्शन, इसका वो स्ट्रेंथ के है ना, वो दिखा नहीं, वो इट वेंट आउट ऑफ द स्क्रीन. ठीक है, अभी कितने क्लास है मेरे पास, एक क्लास इनमटेक है, एक क्लास इनमटेक मेन है. सेव किसे करूं इसको मैं, जिसके पास मेन है. तो कॉपी किया, क्लिक किया इधर, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ ET main. आई एम नेमिंग इट स्टैटिक ET main. किस नाम से, स्टैट, ताकि अपने को जब मैं प्रोग्राम सेव करूं तो तुमको मालूम हो कि क्या है. तो क्या करूंगा इधर भी मैं, ठीक है, सेव किया. नाउ आई विल कंपाइल दिस. आई विल एबल टू सी द कमांड स्क्रीन. जावा सी कंपाइल हो गया, और अभी मैं रन करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 0, स्टूडेंट्स आर 2, 2 and 2. We didn't use println क्या, we didn't, you should have used println. ठीक है, इसको सेव किया, इधर आ गए, कंपाइल किया और रन किया, तो क्या आया 0, 2, 2, 2 है ना. If I ask over here, if I ask E1 over here कितने बच्चे हैं, तो क्या होगा, तो क्या आएगा आंसर 0, 1, 2, 2, 2. So let's compile it. समझा. तो ये था स्टैटिक डेटा और स्टैटिक मेथड. इसको अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस करो.